डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया था, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 वर्क, एनर्जी एंड पावर बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसके फर्स्ट पार्ट में अपन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अपन स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी in which scalar quantity will be obtained is known as scalar or dot product. The scalar product is represented by dot sign between two vector quantities. For example, a vector dot b vector, a vector dot b vector, a vector dot b vector. Now a vector, two vector quantity a vector and b vector, angle between them is theta, perpendicular drawn on a vector, base perpendicular, hypotenuse base के साथ क्या आएगा b cos theta, b cos theta. Scalar product represented by dot sign between a vector and b vector or two vector quantity, a vector and b vector and two vector quantity. तो a vector dot b vector equal to ab cos theta, a vector dot b vector equal to ab cos theta. The scalar product of two vectors, scalar product of two vectors is the product of magnitude of two vectors, product of magnitude of two vectors and cosine of angle between them, cosine of angle between them. The scalar product of two vectors is equal to product of two vectors and cosine of angle of between them, cosine of angle between them. Okay, a vector dot b vector equal to ab cos theta. Properties of scalar product, properties of scalar product, properties of scalar product. First properties, in scalar product quantity will be found is scalar quantity. Okay, first property क्या है? In scalar product the quantity will be obtained is scalar quantity, quantity will be obtained in scalar quantity. Okay, second property, a vector dot b vector equal to ab cos theta, ab cos theta. Angle between b vector and a vector is 360 minus theta, 360 minus थीटा. तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू b a cos 360 माइनस थीटा. cos 360 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, नहीं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है. cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा. तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू b a cos थीटा, b a cos थीटा. b vector dot a vector equal to b a cos theta. This is equation first. Second, a vector dot b vector equal to b vector dot a vector, b vector dot a vector. Second property क्या है? The scalar product follows the commutative law.
स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द कम्युलेटिव लॉ, अर्थात उसका ऑर्डर चेंज करने से कोई इसके स्केलर प्रोडक्ट पर इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आ जाएगा। द स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है वो देखें। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम। टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, if a vector parallel b vector, it means theta equal to 0, cos theta equal to cos 0 equal to 1. Now a vector dot b vector equal to ab cos theta equal to ab, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम। ओके, a वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ, आई कैप डॉट आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिटी, सेकंड आई कैप का भी यूनिटी, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी 0। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी 0। इट मीन्स if a vector perpendicular b vector theta equal to 90, cos theta equal to cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, क्या आ गया, 0 आ गया। we know that a vector dot b vector equal to a b cos theta, a b cos theta, और ए बी कोस थीटा है तो ये क्या आ गया, कोस थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो 0 आ गई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, आई कैप, इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, देन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वर्ड्स में। नाउ आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, और के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 0। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 0। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
two vectors in the form of components. Let first vector quantity a vector in the form of components is a vector equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. और next quantity, the scalar product of two vectors in the form of components. Let a vector equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap और b vector equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. Now scalar product of a vector and b vector. A vector and b vector equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap dot bx I cap by j cap bz k cap. ओके, ax को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, ay को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, az को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ax bx I कैप डॉट j कैप ax by I कैप डॉट I कैप, यहां पर I कैप डॉट j कैप प्लस ax bz I कैप डॉट k कैप प्लस ay b अक्ष j कैप डॉट I कैप प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप प्लस az b अक्ष k कैप डॉट I कैप प्लस az by और k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप. यहां 9 टर्म्स टोटल आए हैं, देखो 3 3 मल्टीप्लाई 9, 3 इंटू 3 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. We know that since I cap dot I cap equal to j cap dot j cap equal to k cap dot k cap equal to 1, I cap dot j cap equal to j cap dot I cap equal to j cap dot, ये जीरो, चलो यहाँ इनको जीरो लिख दिया. नेक्स्ट j cap dot k cap इक्वल टू k कैप डॉट j कैप 0 और k कैप डॉट I कैप इक्वल टू I कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0. ओके, तो इसका 1, j कैप डॉट j कैप 1, k कैप डॉट k कैप 1, I कैप डॉट j कैप इक्वल टू 0, I कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0, j कैप डॉट I कैप इक्वल टू 0 और j कैप डॉट k कैप इक्वल टू 0, k कैप डॉट I कैप इक्वल टू 0, k कैप डॉट j कैप इक्वल टू 0. तो 6 टर्म्स यहाँ क्या हो गए, 0 हो गए और 3 टर्म्स की I कैप डॉट I कैप, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये आंसर हो गया। ओके, जैसे आपको ये दे दे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो इनका सब मल्टीप्लायर रख के इसका मल्टीप्लीकेशन ज्ञात किया जा सकता है। स्केलर प्रोडक्ट अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, 7th प्रॉपर्टी है determine angle between two vectors, determine angle between two vectors, a vector dot b vector equal to ab cos theta और cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आई कैप का मल्टीप्लायर का स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर प्लस के कैप के मल्टीप्लायर का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आई कैप का मल्टीप्लायर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। इस प्रकार से अपन क्या है एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच के। ओके, ये प्रॉपर्टी हुई। अब बात करते हैं अपन इसकी एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है वर्क। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। तो W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अगर आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का आपको क्या मैग्नीट्यूड है और उसके बीच का एंगल गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, the power at any moment is known as instantaneous power, हाँ। सेकंड एग्जाम्पल, instantaneous power, the power at any moment at any instant is known as instantaneous power. The scalar product of force and velocity is equal to instantaneous power. P
इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू एफ वी cos theta. If force and displacement are given in vector form, if force and velocity are given in vector form, then scalar product of force and velocity equal to instantaneous power. अगर आपको फोर्स एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है और इसके बीच का एंगल गिवन है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं एफ वी कोस थीटा. थर्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय phi E. The scalar product of electric field intensity E vector and vector area A vector is equal to electric flux phi E equal to E vector dot A vector equal to E A cos theta. E A cos theta. Electric field intensity and area are given in vector form, then scalar product of electric field intensity and area vector is equal to electric flux. और magnitude of electric field intensity and magnitude of area and angle between them theta are given, then formula phi E equal to EA cos theta. Fourth example, magnetic flux phi B. The scalar product of magnetic field intensity B vector and area A vector phi B equal to B vector dot A vector or equal to B A cos theta. B A cos theta. If electric field intensity and area vector are given in the form of a vector quantity, then scalar product of magnetic field intensity and area vector is equal to magnetic flux. Magnitude of magnetic field intensity and area vector and angle between them, then magnetic flux phi B equal to BA cos theta. Last example, electric current. इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट I, the current density J vector, scalar product of current density J vector and area vector equal to electric current I equal to J vector dot A vector equal to J A cos theta. J A cos theta. Okay.